खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसकी उपस्थिति में आने का। We thank the Lord that He has given us another opportunity to be in His presence. If you have your Bible, I want you to turn to Genesis chapter 32, verse number 22 to 32. Genesis chapter 32, उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय, उसका 22वां वाक्य, Genesis chapter 32, verse number 22 onwards. Amen. Hallelujah. Jesus, we bless your name, Lord. We are still believing that God will give us a supernatural shift. और हम अब भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक सुपरनैचुरल शिफ्ट को हमें देने जा रहा है। Amen. And we will continue to believe that today morning we had such a powerful service. और हम यही विश्वास करेंगे क्योंकि आज सुबह भी हमने बहुत ही एक सामर्थ्य और एक अद्भुत सेवकाई को देखा है। God spoke to us. परमेश्वर ने हमसे बात की। We in fact didn't feel like stopping the worship today. और मानो ऐसा हो रहा था कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि आराधना रुके। But then we had time constraints. लेकिन हमारे पास समय की बहुत पाबंदी थी। But it was a very powerful service. लेकिन वो बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्य थी, एक सेवकाई थी। Let us read from the word of God. आइए मिलकर कलाम से पढ़ेंगे। And it says, and he rose up that night and took his 2 wives and his 2 women servants and his 11 sons and passed over the ford Jabbok. And he took them and sent them over the brook and sent over that he had. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Let's read that in Hindi now. Hindi में अब उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियां और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। Amen. आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएं। Let's lift up our holy hands. Father, we bless you. पिता, हम आपका धन्यवाद। We bless your name today. हम आपके नाम को आदर देते We हैं। lift up your name today, Master. आपके नाम को उठाते हैं यहोवा। We thank you that you're with us. और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संग We हैं। thank you that your name is with us. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपका नाम हमारे संग है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। देते आदर तुझको यीशु, आदर तुझको यीशु, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। देते आदर तुझको यीशु, आदर तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। Father, speak to us tonight. पिता, आज हमसे बात कीजिएगा। Touch us tonight. हमें छुइएगा। Bless us हमें tonight. आशीषित कीजिएगा। And in the name of Jesus we और pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते Let's हैं। together say amen. आमेन। Let's together say amen. आमेन। Give a clap offering to Jesus and be seated. परमेश्वर को धन्यवाद ताली चलाएं और आप अपनी जगहों पे बैठ सकते हैं। Amen. Praise the Lord. Jesus, hallelujah. Amen. Amen. Morning we heard a preaching about the story of Elijah and the axe. और हमने सुबह जो है एलाइशा के विषय में सीखा और उन कामों के विषयों में सीखा। That how Elisha was used
to bring back an axe, the और- head of an axe. कैसे एक कुल्हाड़ी के सर को इलाइशा पानी से वापस लेकर आए, उस विषय में हमने सीखा। And we learned how a shift was brought into their life. और हमने सीखा कि कैसे एक शिफ्ट उनके जीवनों में आया। So I was thinking, what should I preach in the evenings so that we could be in the same line? और मैंने सोचा कि शाम में क्या प्रचार करें ताकि हम दोनों सुबह शाम एक ही पेज पे रहें या एक ही संग रहें। And then God led me to this beautiful story in the Bible. और फिर प्रभु मुझे इस खूबसूरत कहानी की ओर लेकर गया And वचन it's a से। very prominent story. और ये कहानी बहुत ही ज्यादा जानी मानी है। It is connected to it is very much connected to the New Testament story of Peter. और ये कहानी जो है बहुत हद तक पतरस की कहानी से मिलती जुलती है जो नए नियम में There पाई is जाती something है। very greater happening in this story than what your eyes can see. इस कहानी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा So रहे we हैं। are going to see revelatory today as to what this story wants to talk to us. और आज हम इस कहानी के उस प्रकाशन की ओर, उस रहस्य की ओर, उस सीक्रेट रेवलेशन की ओर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे कि ये कहानी हमसे आज क्या कहना चाहती है। It starts like this ये ऐसे शुरू होती at है verse 22. 22वें आयत में It says Jacob कहते हैं कि याकूब left Laban. लाबान को छोड़ चुके थे। He decided to leave Laban. वो लाबान को छोड़कर निकलने की उन्होंने Some of निर्णय कर your लिया। greatest miracles happen when you leave something and someone. और आप में से कुछ लोगों के जीवन के सबसे बड़े चमत्कार तब होते हैं जब आप कुछ लोगों को और कुछ चीजों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करके निकल जाते हैं। When you decide to leave, जब आप ये निर्णय लेते हैं छोड़ देने का, that means you have decided to catch something else. इसका मतलब ये है कि आपने कुछ छोड़ा है तो आप कुछ नया पकड़ने की तैयारी में हैं। When God is asking you to leave something, जब परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने की आज्ञा देता that means है, God is also asking you to take something. इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर आपको कुछ नया लेने की भी आज्ञा दे रहा है। Tonight, people of God, if God has asked you to leave something, be happy because God is asking you to take something also. आज रात को प्रभु के लोगों, अगर परमेश्वर कुछ कहता है आपको छोड़ देने के लिए तो उसको आप छोड़ दीजिए कुछ, क्योंकि कुछ नया परमेश्वर आपसे पकड़वाना या लेवाना चाहता है। If you need a supernatural shift, you cannot hold on to things that God doesn't want. You have to leave it for God to give you some new things into your life. अगर आपको एक सुपरनैचुरल शिफ्ट सचमुच चाहिए तो आप उन पुरानी चीजों को या ऐसी वस्तुओं को पकड़ कर नहीं बैठ सकते जिसे खुदा ने बोला है छोड़ दे, और उसके साथ आप नई वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकते। For Jacob, it was impossible to leave his uncle because he was living in a comfort zone. और याकूब को अपने अंकल लाबान को छोड़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसने अपना घर वर सारा बसा लिया था, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था वहां पे। उसको वहां से निकलना उसके लिए मानो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। But that's where a shift happened in his life. लेकिन वहीं पर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। Don't get me wrong, some of you are living in the wrong location, wrong place, and some of you need to change that location in the name of Jesus today. बुरा मत मानिएगा जब मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग कुछ गलत जगहों में, कुछ गलत एड्रेसों पे रह रहे हैं। वहां से आप जब तक निकलेंगे नहीं, परमेश्वर नई चीजों को आपके लिए खोल नहीं I am पाएगा। even telling you prophetically, the day you will leave your home where you are living right now, some of your greater shifts will happen. मैं आपको इतना तक घोषणा करके कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप अपने उस घर से निकल जाएंगे जहां आपको नहीं रहना चाहिए, वहां से आपके जीवन के सबसे बड़े शिफ्ट्स और सबसे बड़े मिरेकल्स आपके जीवन में दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको लग रहा है किराया कौन देगा, कैसे होगा, बड़े घर में कैसे जाऊंगा, लोकेशन बदलूंगा तो क्या होगा? मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन कदम बढ़ाओगे, जिस दिन विश्वास के साथ आप उस घर से निकल जाओगे, उस लोकेशन से हट जाओगे। कई लोगों का प्रॉब्लम लोकेशन है, जब तक नहीं बदलोगे तब तक नहीं उठोगे। Change your location for God to bless you tonight. Amen. Many of us are worried how will we pay our rent, how will we go forward about in a new location, and many other worries that we carry. But the Lord is telling you clearly tonight, move out and the Lord will take care of the rest. अपनी लोकेशन से बाहर निकलो। One of the first things as I was preparing this sermon, और जब पहली
चीज जो मैंने इस सर्मन को तैयार करने में मैंने तैयार The की, first thing that God told me was, पहली चीज जो प्रभु ने मुझसे बात की many people are living in the wrong place. कि कई लोग गलत जगहों पर रह रहे हैं। You have been stuck for 10, 5, 20 years in a location that hasn't blessed you yet. आप में से कुछ लोग 5, 10, 20 सालों से एक ही जगह पे अटके हुए हैं और आशीषित नहीं हुए हैं। But when Jacob decided to leave that location, लेकिन जब याकूब ने उस लोकेशन को, अपनी जगह को छोड़ने का निर्णय लिया, he also didn't realize there was a shift that was happening beyond him. और उसको भी नहीं पता लगा कि जब वो निकल ही रहा था तो उसके संग एक शिफ्ट उसके साथ थरथराते हुए निकल रहा Tonight था। my prayer is that God gives you that same power that God gave Jacob to take a step of faith outside of your comfort zone. आज रात को मेरी भी प्रार्थना आपके लिए ये है कि परमेश्वर आपको इतनी शक्ति दे, परमेश्वर आपको इतना बल दे कि आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने बसे हुए उस जगह से निकलकर परमेश्वर की योजना के और एक कदम को बाहर बढ़ाएं। Not once but many times God has asked me to change the location. एक बार नहीं, बार-बार परमेश्वर ने आपसे बात किया है अपनी लोकेशन को बदलने के लिए। Tonight God is speaking to some of you to change your location. आज रात को भी आप में से कुछ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है कि अपने एड्रेस को बदलो, अपने लोकेशन को If बदलो। I was you, I would have gone back and put a notice to my owner, I am leaving my home because I'm going to get to a better location now. और अगर मैं आप होता तो जरूर अपने मकान मालिक को जाके एक नोटिस जरूर देता कि मैं जल्द यहाँ से निकलने जा रहा हूँ। Address. अपने एड्रेस को बदल दो, Change your address. अपने एड्रेस को बदल दो, Change your address. अपने एड्रेस को बदल South दो। Delhi आ जाओ. Change your address. Come to South Delhi, Change your address. अपने पते I'll को say बदल that दो, again. Change your address. अपने पते को बदल दो, Change your home. अपने घर बदल Change दो, your place. अपनी जगह बदल And दो। I'm telling you, you will see a shift like never before in the name of Jesus. और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही कहना चाहता हूँ, आप ऐसे बदलाव को देखेंगे, ऐसे शिफ्ट को देखेंगे। Reinhard Bonnke wouldn't have been Bonnke if he wouldn't have shifted his location from Germany. और रेनार्ड बॉन्के, प्रभु के श्रेष्ठ दास, अपनी कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में इतने श्रेष्ठ बन ही नहीं पाते अगर वो जर्मनी देश को छोड़कर ना जाते। Billy Graham wouldn't have been the greatest evangelist on planet Earth if he wouldn't have changed his location from a pastor to an evangelist. और बिली ग्राहम प्रभु के श्रेष्ठ दास उतनी श्रेष्ठता में अपनी बुलाहट को पूरा ना कर पाते अगर वो एक कलीसिया के पास्टर बन के रह जाते, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक इवेंजलिस्ट जो जगह 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 देशों जाकर प्रचार करते हैं, अपने आप को ना ठहराते। If you can break your comfort zone tonight, your shift is happening right there, right then, at that moment. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में से, जहां पे आप बहुत आरामदायी हो चुके हैं, वहां से निकलकर अगर आप उस जगह को शिफ्ट करने के लिए शुरू करेंगे तो आप परमेश्वर की ओर से भी एक सुपरनैचुरल शिफ्ट को देखेंगे। So now he left his uncle, और यहाँ पर वो अपने अंकल को छोड़ चुका है, left that home, वो घर छोड़ चुका है। and then it says, and he rose up that night. और वचन बताती है कि वो उस रात उठा। People usually change in the morning, not at night. लोग सुबह बदलते हैं, रात को नहीं। But he decided to change at night. लेकिन उसने निर्णय लिया कि वो रात को ही बदलेगा। That shows urgency. इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक बहुत बड़ी जल्दी लगी। He said, I'm not going to wait till morning. I'm going to change it right now in the name of Jesus. उसने कहा मैं सुबह तक होने का इंतजार नहीं कर सकता, मैं रात ही को अपने इस परिस्थिति को, इस जगह को बदलने जा रहा That in हूँ। itself is a shift that is happening in his life. और यही उसके जीवन की शिफ्ट की शुरुआत हो जाती क्योंकि है। याकूब एक थका हुआ आदमी था और हर चीज वो बाद में ही करता था, लेट करता था, लेकिन जब अंकल को छोड़ा तो बाकी चीजें करने का हिम्मत उसे अपने आप ही मिलने लग गया। Amen. Jacob was a man who used to postpone things. Amen. Hallelujah. But when he had this urgency from the Lord to change his location, he didn't wait for the morning. You are in didn't wait class for the 12, next right? place. See? He left at the night itself. When you're in class 12, you will feel like postponing studies. और जब आप 12वीं कक्षा में होते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। Don't worry, all of us have done that. देखिए हम सब ने यही किया हुआ है। Right? The girl next to you have done that.
The girl next to you have done that. आपके अगल बगल में The बैठे brother next to you have done लोगों ने that. भी यही किया This है। brother has done that, and trust me, your father has done that. If not, ask his mark sheet someday. Right? All of us have done that. But the day, just then, the day you take one step in faith, the next step will automatically go. जब एक कदम खुद बढ़ा लोगे तो अगले कदम बढ़ते ही चले जाएंगे। शैतान तेरी पहले कदम को रोक रहा है क्योंकि उसे पता है पहला रोक के रखना है। अगर पहला बढ़ जाए दूसरा अपने आप बढ़ेगा, तीसरा अपने आप बढ़ेगा, चौथा अपने आप बढ़ेगा, पांचवा अपने आप बढ़ेगा, छठा अपने आप बढ़ेगा। Amen. The devil knows that he has to stop your वो first सिर्फ step. पहला ही रोकेगा। He is stopping your He's first stopping step. the first one. पहला रोक रहा है वो। And that's what he is doing with all of us. और हम सभी के साथ वो यही कर रहा है। Stopping that first one. हमारे पहले कदम को रोक रहा है। First one. पहला। First one. पहला। First one. पहला। Look at that race. The person who races. जो व्यक्ति दौड़ के लिए तैयार होता है He's waiting for that first step. वो उसके पहले कदम का इंतजार If करता that है। first step is stopped, अगर वो पहला कदम ही उसका रुक जाए he won't be able to run the next one. वो दूसरा भाग ही नहीं पाएगा। But if the first one is perfect, लेकिन अगर उसका पहला कदम his बेहतरीन end होगा will be perfect. उसका अंत भी बेहतरीन होगा। Many times in a race, कई बार दौड़ में it is at the beginning second itself you will know whether you will win or not. शुरू के उस सेकंड में ही पता लग जाता है कि तुम जीतोगे या नहीं। Some of you, if you can take that first step tonight, आप में से कुछ लोग अगर आज रात वो पहला कदम उठा everything will change ले for you. हर चीज आपके लिए बदलेगी। When he decided to leave uncle, जैसे ही उसने ये निर्णय लिया कि वो अपने अंकल को छोड़ देगा he realized he can do more things now. उसको पता लगा कि उसके द्वारा वो और भी काम कर सकता Something है। stirred within him. कुछ तो उसके अंदर He realized मिला। now I'm not going to wait till morning. I'm going to do things at night. और उसने कहा कि अब मैं सुबह का इंतजार नहीं करूंगा, रात ही में चीजों को करूंगा। जो व्यक्ति कल तक और परसों तक का समय रहता था वो कहता कल तक का भी नहीं लूंगा, आज रात को चीजें बदलेंगी मेरे लिए। Amen. The person who procrastinated the most, he's saying tonight itself I will take a step. If you want to pray, you pray tonight, not tomorrow. You don't decide for tomorrow. You decide for today. आपको प्रार्थना करना है, आज रात को घुटने पे आके प्रार्थना करो। कल क्या करोगे उसकी टाइम टेबल मत बनाओ। Some of you say, I will worship tomorrow. Don't worship tomorrow. You are in the presence of God. Worship tonight in the presence of God. आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं कल से आराधना करूंगा, अगले संडे से आराधना करूंगा। नहीं, आप अगर आज अभी इसी वक्त परमेश्वर की हुजूरी में है, भवन में है, तो आज अभी इसी वक्त से आराधना करना शुरू करें। Hallelujah. So he got up at night. तो वो रात को उठा He rose up at night और वो रात को उठा and took his 2 wives और दो अपनी पत्नियों को and उठाया his 2 women servants और अपनी दो उन दासियों को लिया and his 11 sons और अपने 11 लड़कों को लिया and passed over the ford Jabbok. और यबोक नाम की उस नदी के पार उतर गया। Someday I will just preach about Jabbok, किसी दिन मैं सिर्फ जबोक के बारे में बताऊंगा, but I don't want to go there tonight. आज रात को नहीं बताऊंगा। But he crossed over. लेकिन उसने I उस नदी like को that. पार Put that किया verse again. He crossed over. और वहां लिखा है यबोक नदी पार उतर गया, He passed over. उसको पार कर गया। Some of you need to pass over certain things in your life. आप में से कुछ लोगों को अपने जीवन के कुछ पहलुओं से और कुछ नदियों को पार करना बहुत जरूरी He है। just didn't take care of his uncle. He took care of his wife, women servants, 11 sons, and everything that he had. He took care of all of it. और वो सिर्फ अपने अंकल का ख्याल नहीं रख रहा था, उनकी 2 पत्नियां थी, 11 लड़के थे और जितना भी कुछ उसके पास था उन सब का चीज का कारोबार को वो संभाल रहा था। मैं कुछ आपको बोलूं, Shall I tell you something? आप में से कुछ लोगों की जिंदगी आपके परिवारों में ही खत्म हो जाएगी। Some of you will keep finishing your life in your family businesses. उन्हीं मसलों में पढ़ कर आप खत्म हो जाओगे। Your daily agendas and your everyday agendas would be same, that you will be busy solving पत्नी, your family बच्चे, problems. पति, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। Wife, husband, children, this will be your उसी territory. मसलों में निकल जाएगा। And only in these troubles and दुनिया problems को you'll be पता भी नहीं stuck. लगेगा आप आए और आप चले गए। The world will never realize when you came and when you left. अगर मैं खुदा में हूँ, If I am in Christ, मैं हमेशा ये सोचता अगर मैं खुदा में हूँ, I think that when I am in Christ,
प्रभु सबसे पहले मुझे आशीषित करेगा। then I believe that the Lord will bless me first. अगर प्रभु महिमा को ब्लेस कर दे और मैं बोलूं कि महिमा ब्लेस्ड है क्योंकि मैंने दुआ किया, तुरंत समझ जाना आप मुझे देखो पहले। मेरी प्रार्थना अगर मुझे नहीं बदल पा रही तो मेरी प्रार्थना इसको क्या बदलेगी? And you must watch very carefully whether you know. एग्जाम्पल लुमिनी आंटी है ना, मान लो मिनी आंटी को मैं 25 इयर्स से जान रहा हूँ, है ना, 25 तो नहीं 20 इयर्स से जान रहा हूँ, 20 इयर्स से जान रहा हूँ। मान लो कल एन बहुत आशीषित हो गई और मिनी आंटी बोलती है मेरी वजह से एन आशीषित हुई है, मत बोलना, because you will be, your blessings will be judged by you, not by somebody else. आपके द्वारा जांची जाएगी, जानी जाएंगी, आपके अंदर दिखी जाएंगी, किसी और की भलाइयों में आपकी आशीष नहीं गिनी जाएगी। I would want you to be blessed. मैं चाहूंगा कि आप आशीषित हों। And I want Anne to be blessed separate. और मैं चाहता हूँ कि एन भी And I want आशीषित हो। Alfie to be blessed separate. मैं चाहता हूँ एल्फी भी अलग And से I want आशीषित हो। Arul to be blessed separate. मैं चाहता हूँ अरुल भी अलग And से I want आशीषित हो। Tushar to be blessed separate. मैं चाहता हूँ तुषार अलग से And I आशीषित want हो। Tushar's mom to be blessed separate. मैं चाहता हूँ उनकी माँ भी अलग तरीके से आशीषित हो। Do not live a life where you came, you went, and nobody even came to know that you lived or existed on planet Earth. ऐसी जीवन मत जियो कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगे कि ऐसा एक बंदा पैदा हुआ था, जिया था और निकल भी गया। Jacob after 21 years realized, भाई मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या है? And 21 years later, Jacob realized, what have I done to my life? 2 पत्नी 11 बच्चे के अलावा मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या है? 11 बच्चे पैदा करने के अलावा इस आदमी का कोई काम ही नहीं था। What has this man done except for reproducing 11 children? Reproducing children should not be taken as a big thing, my dear people of God. बच्चा पैदा करने की क्षमता को एक बहुत बड़ी सम्मानता मत दीजिए। अगर लाइव नहीं होता तो किसी और का तुलना करके मैं आपको समझाता। Life is not about coming and going. जीवन इस विषय में नहीं है कि आए और चले गए। मैंने कुछ दिन पहले BTS के बारे में क्या बोला, लोग मेरा सर खा गए, कह रहे भाई तुमने BTS को जज कैसे कर लिया? मैं कह रहा हूं 2 बार और करूंगा, उखाड़ ले जो उखाड़ना है तुझे। यहाँ पे लोग मर रहे भाई उनके वजह से, अश्लीलता में जा रहे, और तुम भाई मैं यहाँ अच्छा प्रचार करने नहीं आया हूँ, सच्चा प्रचार करने आया हूँ। अच्छे के लिए तुम ढूंढो किसी और। प्रॉब्लम पता है क्या? लोगों के अंदर एक बड़ी दिक्कत पता है क्या है? वो ध्यान से बाइबल नहीं पकड़ पढ़ते। यीशु ने जब धज्जियां उड़ाने की बारी यीशु की आई ना, तो यीशु मुंह पे खड़े होके बोलता था पाखंडियों। पाप पाप है, पवित्रता पवित्रता है। पाप को मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। Amen. You cannot. उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। Amen. You cannot hide sins under the cover of holiness. उन सबको मैं पसंद करता हूँ, मेरी तो प्रार्थना है वो 500 प्रभु में आ जाए, लेकिन जो वो आज कर रहे हैं वो गलत है। Amen. I pray that all of them come to faith, but today what they are doing is not right. तुम्हें नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हारा बच्चा उसमें फंसा नहीं है। तुम्हें नहीं लग रहा क्योंकि बाकी लोग उसके अंदर फंसे नहीं। देखो, जब आप किसी को ना आइडल बना लेते हो ना, आप उल्लंघन कर रहे हो उस पहले नियम का जो पिता परमेश्वर ने आपको दिया है। Amen. When you idolize anything, you are breaking the first and very first rule of God, that you shall have no other gods. और पता नहीं वो कौन है, वो एक जेनेसिस करके चैनल है, प्लीज आप ना उनको लिखो कि भाई थोड़ा उसका लेफ्ट और राइट भी दिखा दिया करो, क्योंकि आपको तो मसाला मिल गया। और ये बड़ा गलत करते हैं ऐसे लोग जो ना आगे का भी नहीं दिखाते और पीछे का भी नहीं दिखाते, सिर्फ फॉलोअर्स के लिए, है ना। फोटो किसी और का, रील हमारे डाले हुए है ना, आपको फॉलोअर्स। ये सब काम मत करो, मैं आपको कह रहा हूं कुछ और कर लो। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए है। अगर वचन बांटना ही है तो पूरा बांटो यार, क्या आधा आधा निकाल के 30 सेकंड्स का मसाला बांट रहे हो ताकि तुम्हें कुछ चीजें मिल जाए, राइट?
People of God, we are called to take a stand. We are called to take that one stand. हमें एक वो कदम लेने के लिए बुलाया गया है। When Jacob took that one stand, और जब याकूब ने वो पहला कदम लिया, Jacob said, enough is enough. 20 years I have wasted my life. याकूब ने कहा बस बहुत हो गया, 20 साल मैंने अपने जीवन को Before खराब that, कर दिया। 70 years I have wasted my life. और उससे पहले के 70 साल मैंने अपने जीवन को Pastor खराब किया है। Jacob is 97 years of age right now. और अभी इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो याकूब अभी 97 He साल is का in है his 90s right now. और अभी वो अपने 90 वाली शतक में है। He has cheated his father, he cheated his brother, he's cheated his uncle right now, and he's coming back. उसने अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, अब वो अपने अंकल को धोखा दे रहा है और अब वो अपने जीवन में वापस कदम रख रहा है। 90 years, 90 साल, lost everything. सब कुछ खो दिया। But there is a supernatural shift happening right now in his life. लेकिन अभी उसके जीवन में एक सुपरनैचुरल शिफ्ट God हो is रहा है। ministering to him. परमेश्वर उससे कुछ कह रहा God is है। ministering to him. परमेश्वर उससे कुछ कह रहा Changing है his life. और Changing his life. उसका जीवन बदल रहा है। He's taken a step by faith. उसने एक कदम लिया है विश्वास से। Left his uncle, left his wife, left everybody, and he's decided, I'm going to go and meet God right now. उसने अपने अंकल को छोड़ दिया, अपने जीवन को हटा दिया, अपना सब कुछ हटा के उसने कहा अब मैं परमेश्वर से And मिलने जा रहा Bible says हूँ। he sent everybody else somewhere. और बाइबल बताती है उसने पूरे अपने घर घराने खानदान को कहीं और भेज दिया। कभी जिंदगी में आपको भी अकेला होना जरूरी है। Sometimes in your life you also need to be alone. कभी कभी अपने बारे में सोचना भी जरूरी है। And sometimes you have to think about yourself. अगर नहीं सोचोगे तो कल दुखी हो जाओगे। आज सीजन है, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। If you do not think about yourself today, you will be sad tomorrow. So start thinking about yourself as well. अगर कोई बहन मुझे सुन रही है, तेरा इकलौता काम दाल चावल चटनी बनाकर पति के पेट को फुलाना नहीं है, तू इससे बेहतर बनी है। And tonight, if any woman is listening to me, your work is not to feed your family only. It is your work to also take and look after मर्द को yourself. मैं कह रहा हूँ, तेरा इकलौता काम पूरे परिवार को खिलाना नहीं है, पूरे दिन पूरी रात मेहनत करना नहीं है। तुझे इससे भी बेहतर खुदा ने तैयार किया है। पत्रस को देखकर परमेश्वर ने कहा, तुझे मच्छी पकड़ने वाले से मैं तुझे इंसान पकड़ने वाला बनाने जा रहा हूँ। And to all men, we want to say that you are not here to just toil hard every day and provide for your family. You must look after yourself, because to Peter, Jesus said, you will not only be fishers of normal fish, but you will be fishers of men, and you shall be called like that. And God has called you for much greater purpose than this. And Bible says he was isolated. और बाइबल बताती है कि वो अकेला हो गया। He was isolated. God isolated him. और परमेश्वर ने उसे अकेला कर दिया। Whenever God isolates you, और जब भी परमेश्वर आपको अकेलेपन में डाल दे, अकेला कर दे, that means God is about to shift things for you. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ चीजों को शिफ्ट करने जा रहा Now है। he is not with his uncle, अब वो अपने अंकल के साथ not with नहीं, his 11 children, ना अपने 11 बच्चों के not साथ, with his 2 wives. और ना अपने 2 बीवियों Bible के साथ। says he is alone right now. बाइबल बताती है इस वक्त वो अकेला है। And it is at that alone moment और ये अकेले समय में a divine thing is about to happen in his life. कुछ अलौकिक चीज उसके A जीवन में होने वाली divine है। shift is about to happen in his एक life. डिवाइन शिफ्ट उसके जीवन में होने If वाली है। God can isolate you, अगर परमेश्वर आपको अकेले में पाले, if God can isolate you, और आपको अकेले में if परमेश्वर you पाले, can go alone in the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले जा पाए, there is something powerful that's about to happen for you. तो आपके लिए कुछ बहुत ही सामर्थ्य, अति सामर्थ्य आपके लिए होने जा रहा When है। we were in UK, जब हम यूके में थे, we had a wonderful meeting on the first day. हमारा बहुत ही अद्भुत मीटिंग था पहले दिन, We'll be posting both those videos. और दोनों वीडियोस हम जल्द ही डालेंगे। The first day was very glorious. पहला दिन बहुत ही अद्भुत महिमामय The था। second day, दूसरा दिन, listen to me, the second day, दूसरे दिन, so many news came to me. और इतने सारे बातें मेरे पास आई। On Saturday, सैटरडे one of our children in our church was admitted in the hospital. हमारे कलीसिया का एक छोटा बच्चा वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हुआ था। Then another person was admitted because of heart attack in the hospital. एक दूसरे व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल में A एडमिट किया हुआ third था। person had an accident where her head was crushed.
और एक तीसरी व्यक्ति जिनका एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ जिससे उनका सर फट गया A था। fourth person had an accident where his leg was broken. और चौथे व्यक्ति का पाँव में चोट लग गई एक्सीडेंट के The कारण। fifth person, his teeth was broken. पांचवा व्यक्ति उसके दांत टूट गए। Amen. And then a sixth person got sick and got admitted in the hospital. और छठा व्यक्ति जो बीमार हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। Imagine, as a pastor, I have never left a Sunday this entire year, and I leave one Sunday and the devil brings me 6 problems that I know right now. और एक संडे पूरे साल में मैं कलीसिया अपनी कलीसिया छोड़कर जाता हूँ और शैतान मेरे सामने 6 ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों को लेकर ले आता है जो मैं खुद जानता हूँ। When all these problems came, और जब ये सारी दिक्कतें आई, I prayed for all of them. मैंने इन सब के लिए प्रार्थना किया। I went back to God. मैं परमेश्वर के पास गया। I was in my room, मैं अपने कमरे में था right next to my room. और मेरे कमरे के जस्ट बगल में There was a beautiful mountain, एक बहुत खूबसूरत माउंटेन था and I could see the nature of God. और मैं परमेश्वर की उस खूबसूरत सृष्टि को देख पा रहा था। When I looked at that and said, God, 1 week I am away and 6 people are going through problems. मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर मैं एक हफ्ते अपनी कलीसिया से दूर हूँ और इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ चुकी हैं। And then God whispered to me, और परमेश्वर ने मुझसे बात किया, don't worry, चिंता मत कर, I am still there. मैं अब भी वही हूँ। I am Yahweh. मैं याहुवे 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 हूँ। I am मैं Yahweh. याहुवे हूँ। I listened to that. मैंने वो सुना I start preparing again. और फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया। That day was an overflow in that church. और उस दिन उस कलीसिया के अंदर ओवरफ्लो था। There were overflow of people in that place. लोगों की बहुत ज्यादा बहुमत से नंबर में लोग आए। We went to the meeting. हम मीटिंग में गए The moment we started the और meeting, जैसे ही हमने सेवकाई शुरू की, there was a thick presence of the Almighty God. परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ रखा था वहां थी। In few hours, कुछ ही घंटों में there were a lot of men of God, pastors in that meeting. और उस सेवकाई में बहुत सारे प्रभु के दास भी जुड़े थे। One pastor, एक पास्टर, there were a lot of pastors who spoke to me, but one pastor, बहुत सारे प्रभु के दास मुझसे आए बात किए, लेकिन एक उनमें से एक प्रभु के he दास, has been in the United Kingdom serving the Almighty God for more than 20 years. वो उस देश में यूनाइटेड किंगडम्स में 20 साल से अधिक सेवकाई कर Even रहे while हैं। I was preaching, I could see him cry. जब मैं प्रचार कर रहा था, मैं देख पा रहा था कि वो भिलक भिलक कर रो रहे थे। While he was crying, और जब वो रो ही रहे थे, as we were anointing and blessing people, और जब हम लोगों को अनॉइंट करके अभिषेक के साथ आशीषित कर रहे थे, this man came and took a hold of my legs. ये प्रभु के दास आए और घुटनों पर आकर मेरे पाँव को पकड़ लिया He started weeping. और फिर रोने लगे। And I was trying to remove his hands, but he was just not wanting to leave his hands. मैं उनका हाथ अपने पाँव से छुड़वाना चाहता था, लेकिन वो बहुत कस के मुझे पकड़े हुए And then he थे kept holding me tight. और मुझे बहुत कस कर He मुझे was पकड़े stronger, थे। bigger and mightier than me. वो मुझसे लंबे चौड़े हैं कद में। I said, what happened? मैंने पूछा क्या हुआ? He said, 20 years उन्होंने कहा 20 साल I've been serving in this country. मैं इस देश में सेवकाई कर रहा But हूँ, in 20 years, I've never felt the presence of God, what I'm feeling right now. लेकिन 20 साल में मैंने कभी परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति नहीं महसूस की जो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ। That day, उस रात we sang 2 lines. हमने 2 लाइन गाए, That's all. बस। You know, for how many hours? आपको पता है कितने घंटे? 3 hours. 3 For घंटे 3 hours we were singing Yeshua HaMashiach शेर यहूदा का हमें बचाने वाला यीशुआ HaMashiach शेर यहूदा का हमें बचाने वाला। That's it. We didn't sing anything else. और कुछ नहीं गाया हमने।
I was so blessed. I felt my worship team is in United Kingdom. मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी वर्शिप टीम यूनाइटेड किंगडम आ गई है। I was so blessed. मैं इतना आशीषित हुआ। While standing there, और जब मैं वहाँ खड़ा ही था, I was thinking, मैं सोच रहा था, if that worship team is singing so powerfully, वो वर्शिप टीम अगर इतनी सामर्थ्य से I was गा रही thinking है, 2 years later when the entire worship team will go to United Kingdom from ICM, what a glorious moment it would be. मैं ये सोच रहा था कि 2 साल में जब हमारी पूरी ICM की वर्शिप टीम यूनाइटेड किंगडम में जाएगी तो क्या हाल होगा। One of our worshipper, his name is Sijo. He used to be in the beginning days of this church. और इस कलीसिया की शुरुआती दिनों में एक भाई हैं जिनका नाम सिजो है। And when I went to meet him, और जब मैं उनसे मिलने गया, and he said, Arul, और उन्होंने कहा अरुल, I cannot even tell you मैं बता भी नहीं सकता what a presence of God was in that place. कैसी उपस्थिति थी परमेश्वर की वहाँ पर। You know, the meeting had to finish by 10 o'clock. आपको पता है कायदे से वो मीटिंग 10 बजे बंद हो जानी चाहिए थी। And so I stopped my preaching at 9 o'clock. और इसलिए मैंने अपना प्रचार 9 बजे खत्म कर दिया। And then I again stopped it by 9:30. और फिर मैंने उसको 9:30 बजे बंद किया। And then after that I thought we have enough time, we will finish by 10 o'clock. और फिर मैंने सोचा कि अब बहुत समय है, 10 बजे तक तो हम उस कैंपस को बंद कर सकते It हैं। was 11:30 at night. रात के 11:30 बज गए थे। The organizers had to come and say, please leave this place. ऑर्गेनाइजर्स को आके बार-बार बोलना पड़ा कि प्लीज कृपया करके यहाँ से जाइए। Even at 11:30 at night, they didn't feel like leaving that place because it had so much presence of the Holy Ghost. रात के 11:30 बजे भी लोग जाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की इतनी भयंकर सामर्थ्य उपस्थिति वहाँ While मौजूद थी। standing there and ministering, और वहाँ खड़े-खड़े वहाँ पे परमेश्वर सेवकाई कर रहा God था। told me, take this mantle, the same mantle to Jharkhand. और परमेश्वर ने कहा यही मसीह को तू झारखंड लेकर जा। The same presence we are taking to Jharkhand. और उसी उपस्थिति को हम झारखंड लेकर जा रहे हैं। Hundreds and thousands and lakhs of people will come and they will feel the same presence of the Holy Ghost. लाखों की तादाद में लोग इसी उपस्थिति को महसूस करेंगे। Yeshua HaMashiach, शेर यहूदा का हमें बचाने वाला यीशुआ HaMashiach, शेर यहूदा का यीशुआ शेर यहूदा का हमें बचाने वाला यीशुआ हमाशिया यहूदा का हमें बचाने वाला यीशुआ हमाशिया यहूदा का हमें बचाने वाला यीशुआ हमाशिया शेर यहूदा का हमें बचाने वाला यीशुआ हमाशिया यहूदा का हमें बचाने वाला
left everybody, जब याकूब ने सबको छोड़ दिया, there was a supernatural shift that was happening. वहां पर एक सुपरनैचुरल शिफ्ट See, हो you रहा था। have to understand when you take a step by faith, what happens in the heavens. देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप विश्वास से एक कदम को उठाते हैं, क्या होता है स्वर्ग में। See, when you lift up your hands and you worship and you take a step by faith, there is something that is happening in the heavenlies. देखिए, जब आप अपने हाथों को उठा के आराधना करते हैं, आप जब हाथ उठाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो रहा। स्वर्ग में उन मंडलों पे कुछ अद्भुत अलौकिक बदलाव और चीजें हो रही I can हैं। feel the presence of God so powerfully right now. मैं अभी इस वक्त उस उपस्थिति को महसूस कर पाता हूँ। See, when he left Laban, जैसे उन्होंने लाबान को छोड़ा, he left his wives, अपनी पत्नियों को छोड़ा, left his 11 children, अपने 11 लड़कों को छोड़ left दिया, everything, सब कुछ छोड़ दिया, and then he stepped as a single man. और फिर जब अकेला बंदा वो आगे बढ़ा, Bible says something happened in the heavenlies. बाइबल बताती है स्वर्ग मंडलों में कुछ हुआ। Bible says a man decided to meet Jacob. और बाइबल बताती है एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने याकूब से मिलने का A सोचा। man decided to meet Jacob. एक व्यक्ति याकूब से मिलने आया। You get it? क्या आपको समझ में आया? You take a step by faith. आप विश्वास से कदम लें। और बाइबल कहती है किसी ने, जेकब ने जैसे ही सब छोड़ा, स्वर्ग के एक मर्द ने, अमेन, स्वर्ग के एक मर्द ने, अमेन, उसने निर्णय लिया, मैं किससे मिलने आ रहा हूं? मैं याकूब से मिलने। आई बिलीव, मुझे नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग में हमेशा गीत चलते रहते हैं और 24 घंटे आराधना चलती रहती है, और इसी के लिए हम ICM में प्रचार में भी आराधना रोकते नहीं है, क्योंकि आराधना रुक नहीं सकती, आराधना चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर स्वर्ग में चल रही है तो यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। Worship is 24/7 in तो heaven। मेरा मानना है कि जब आपका बेटा, जब जेकब कदम बढ़ा रहा था, स्वर्ग में भी कोई कदम बढ़ा रहा था। Amen। जब जेकब लोगों को छोड़ रहा था, कोई भी कुछ छोड़कर नीचे आ रहा था। And I feel deep in my heart, मुझे ऐसा लगता है मेरे हृदय के अंदर से there was a music that would have been played. वहाँ पर एक म्यूजिक बजा होगा। If I was the choir master, और अगर मैं क्वायर मास्टर होता, hallelujah, हालेलुया, and under me if Ankur was there, and if Mahima was there, and if Bharat was there, and if all the other worship team was there, और अगर वहाँ पे अंकुर भैया होते, महिमा होती, भरत भैया होते, पूरी वर्शिप टीम वहाँ होती, और अगर आप मेरे नीचे होते, and if you will be under me, हम मिलके पता है क्या कहते हैं? what would we say? ना powerful, और ये बहुत सामर्थ्य because है, heaven is shifting for you. क्योंकि अभी स्वर्ग आपके लिए शिफ्ट कर रहा है। It's like the heaven is rejoicing because somebody, सिर्फ आप नहीं छोड़ रहे हो चीजों को, कोई आपके लिए भी स्वर्ग छोड़कर नीचे आ रहा है। Amen। स्वर्ग आनंदित हो रहा है, not because only you have taken a step forward, but because the heaven has also taken a step forward. Understand, an angel coming for you means you left something and the angel is leaving something else. और जरा समझिए कि जब आप एक कदम विश्वास में आगे लेते हैं, तो सिर्फ आपके कदम नहीं बढ़ रहे, स्वर्ग छोड़कर एक स्वर्ग दूत भी अपने कदम लेकर आपकी ओर आता है। कौन सा स्वर्गदूत चाहेगा कि वो स्वर्ग छोड़कर नीचे आए? Which of the angels would want to leave heavens and come? इंडिया के बाहर के लोग तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहते। Just imagine people outside of India don't want to come to India. तो लगता है आपको स्वर्ग छोड़कर कोई आना चाहेगा? Then do you even think
that somebody from heaven would want to come अरे down to भाई, अगर कोई स्वर्ग छोड़कर तेरे लिए कुछ काम करने के लिए आ रहा है तो सोच उधर कितना मजबूर किया गया होगा, जिसके कारण खुदा कहता है जा रे जा, दिल्ली जा और जाकर मेरे बच्चे के लिए ये कर ले। If someone has to really come from down from the heaven, then you must really realize how difficult that would be, and someone would have pushed them so hard to come down for you in the city of Delhi to work for you. You know, every single day I come. हर दिन मैं आता हूँ. Imagine if I keep giving you the same sermon. सोचिए अगर मैं हर बार एक ही प्रचार करता रहूं. I don't talk about Othniel, I don't talk about new things, and then I preach the same sermon every day. मैं नए प्रचार आपको ना दूं और एक ही जैसे प्रचार हर संडे की संडे एक ही प्रचार करता रहूं. Imagine if Pastor Bharat sings the same song, Ankur brother sings the same song, Dr. Mahima sings the same song. How would you feel, right? You'll be आपको like, कैसे लगेगा अगर हर संडे एक ही जैसे गाने हम सभी गाते रहें? but we all the worship team brings new song. When we preach, we bring a new topic every single Sunday. आराधना की टीम नए गीतों को लेकर आती है. प्रचार हम नए बातों का करते हैं. Then why don't you bring your best version of worship every day? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप फिर अपनी बेहतरीन आराधना को हर रोज क्यों नहीं पेश करते? When you come to worship, जब आप आराधना में आए, do not worship like you worshipped last week. Do a better worship. Do a better praise for the Almighty God. आप जब आराधना करें तो पिछले हफ्ते आपने जैसी आराधना की वैसा नहीं, उससे भी बेहतर, उससे भी बढ़िया आराधना राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की, आमीन, हालेलुया, यहोवा की आराधना करें. When Jacob came, जब याकूब आया, a man was waiting for him. एक मनुष्य, एक पुरुष वहां पे उसका इंतजार कर रहा Where people leave you जहाँ is पे- where Jesus meets you. जहां पर लोग आपको छोड़ देते हैं वहां पर यीशु आपसे मिलने पहुंच जाते हैं. अगर यीशु को आपको मिलना है तो कईयों को आपको छोड़ना पड़ेगा. If Jesus has to meet you, then you have to leave a lot of people. And then Jacob came there. और वहां पर याकूब आए. And Bible says और बाइबल बताती है he met a man. वहां पर एक पुरुष से उनकी He मुलाकात हुई. met a man. वहां पर एक पुरुष से उनकी मुलाकात होती है. Hallelujah. हालेलुया. He met a man. एक पुरुष से Who मुलाकात was होती that है. man? कौन था ये पुरुष? Bible says बाइबल बताती है he was God in a man form. बाइबल बताती है वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर था. It was God in a man form. वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर था. Some people tell me कुछ लोग कहते हैं मुझे, they don't see Jesus in the Old Testament. वो कहते हैं कि यीशु को वो पुराने नियम में नहीं देखते. Ezekiel says, I saw God in a human form when he teleported me to heaven, and that was nobody else other than Jesus Christ. और एजेकिएल अपनी व्याख्या में ऐसा कहते हैं कि जब मुझे स्वर्ग की ओर ले जाया गया मैंने परमेश्वर को देखा मनुष्य के स्वरूप में. Jacob, lot of theologians say it was none other than Jesus who had come to meet Jacob that night. और कई सारे बाइबल को पढ़ने वाले, सिखाने वाले लोग इस प्रकार से कहते हैं कि उस रात को कोई और नहीं लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह याकूब से मिलने के लिए आए. In a moment I will prove to you why I believe that. और मैं इस बात पे क्यों विश्वास करता हूँ इसकी पुष्टि मैं जल्द ही करूंगा. And Bible says a man came to meet Jacob, and Jacob realized this is not a normal man, it is God. और बाइबल बताती है कि जब वो पुरुष उनसे मिलने आया याकूब को ये बात समझ आ गई, महसूस हो गई कि ये साधारण आदमी नहीं है, ये आदमी परमेश्वर का है. And it was none other than Jesus. और ये खुद यीशु मसीह है. Because God
has only one human form, and that human form is Jesus Christ. None else can take the glory of God upon their body except for Jesus Christ. और बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर मनुष्य के रूप में कोई परमेश्वर ने अगर धारण किया है तो वो सिर्फ एक लौता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि स्वर्ग और धरती पर कोई और नाम नहीं जिसके नाम के ऊपर कोई और अधिकार प्राप्त किया जाए, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। कोई और में इतनी ताकत ही नहीं है। आप मेरी बात को समझे। यू मिस्ड आउट ऑन दैट माय डियर। किसी और में, किसी स्वर्गदूत में इतना ताकत नहीं है, क्योंकि इसी के लिए मैं, जब लोग मुझे कहते हैं ना कि यीशु नहीं होगा, ये बड़ा डेंजरस लाइन है। जब प्रचारक ये बोलते हैं ये यीशु नहीं है, तो आप कह रहे हैं यीशु की महिमा, उसका पूर्तिकरण किसी और में भी आ सकता है। बिल्कुल नहीं, पिता का पूर्तिकरण सिर्फ एक में ही आ सकता है, और वो नासरत का यीशु, एजेकिएल का यीशु हमाशियाह, दाहिने और बैठने वाला वो यीशु ही है और कोई नहीं है जो शरीर में उसकी महिमा को पूर्ण तरीके से ले ले। Nobody else can take his glory. Come on. कोई और उसकी महिमा नहीं ले सकता except for Jesus. यीशु के अलावा। And Jacob realized that it is somebody extraordinary that is standing in front of me. और याकूब को ये बात मालूम हो गई कि मेरे सामने जो खड़ा है कोई एक अलौकिक व्यक्ति है जो मेरे सम्मुख है। So the question tonight is, how did he know? तो अब सवाल ये बनता है उसको कैसे मालूम लगा? I am here to let you know, when you see Jesus, he doesn't have to say his name. You will know the one who created you the moment you will see the master. मैं आपको आज रात को ये कहना चाहता हूँ कि अगर यीशु आपके सन्मुख प्रकट हो जाए तो दुनिया की किसी ताकत को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो यीशु है, वो कोई और नहीं, आपका सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़ा होगा और आपको मालूम होगा। Jesus doesn't have to convince you that he is Jesus. यीशु को आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ही यीशु हूँ। Let me prove it to you. मैं आपको ये बोध करता हूँ। When Jesus went to Matthew, जब यीशु मत्ती के पास गए, Jesus didn't tell Matthew, I am Jesus. यीशु ने मत्ती को नहीं कहा कि मैं यीशु हूँ। All Jesus said to Matthew was, follow me. मत्ती को सिर्फ इतना कहा, मेरे पीछे हो ले। When he went to John, he said, follow me. जब यूहन्ना के पास गए कहा मेरे पीछे हो ले। When he went to Andrew, he said, follow me. अंद्रियास के पास गए कहा मेरे पीछे हो ले। When he went to Nathaniel, he said, follow me. जब नथानिएल के पास गया तो कहा मेरे पीछे When he went to Philip, he said, follow me. जब फिलिप्पुस के पास गया तो कहा मेरे पीछे हो ले। These people did not ask Jesus, what is your qualification? Where do you come from? What was your education? They knew he is somebody special. जब यीशु इनके पास गया तो इन्होंने नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हो या क्या हो तुम। ये सब उस बुलाहट के पीछे हो लिए। जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले तो ये सब हो लिए। Bible says when Jesus came in front of John in the island of Patmos, oh, John bent over and Jesus said, I am Alpha and I am Omega. You will know when Jesus comes to meet you. जब पतमस के उस द्वीप पे यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, बाइबल बताती है कि यूहन्ना झुक गया, दंडवत में आ गया, क्योंकि उसको पता लग गया कि वो यीशु मसीह है। आमीन। आपको भी पता लग जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपके सन्मुख प्रकट होंगे। I will tell you this, when Jesus will come another time on the cloud, he will not say, I am Jesus. The sound will let you know that he is Jesus. सबको पता लग जाएगा वो यीशु है। किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो यीशु है। And that is the power of Jesus. और यही यीशु की सामर्थ्य है। And that is why when Jacob saw him, और जब यीशु ने उसको देखा,
he said he started wrestling with Jesus. बाइबल बताती है कि याकूब वहां मल्ली युद्ध करने लगा I am यीशु से। coming to that point because this something very prophetic is happening here. और यहाँ पे कुछ बहुत ही भविष्यवाणी के रूप And में it हो was रहा है। necessary for Jesus to come that day because he was showing something in the future through this story. और इस कहानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आना अनिवार्य था क्योंकि वो कुछ बताना चाह रहे थे। So they started wrestling. और वहां पर एक मल्ल युद्ध हो रहा था। Now what does the word wrestle mean? क्या मतलब है ये मल्ल युद्ध का? It comes from the Hebrew word abak. अब्बाक नाम के शब्द से आता है ये। That means to get dusty. इसका मतलब मिट्टी में रेंगना. मिट्टी में रेंगना। So what were they doing? क्या कर रहे थे वो? I wish I could do that with you. काश मैं आपके साथ ये करके दिखाता। Hallelujah. But not tonight. आज नहीं। कभी नौबत आएगी तो करेंगे. I will show it to you when needed. Hallelujah. Amen. They were, उसका मतलब है एक एक के ऊपर मिट्टी पे क्या कर रहा था? ओह, मैं कभी कभी सोच रहा था खुदा 90 years से ऊपर उसने अपनी जिंदगी खराब की, लेकिन मौका देखो खुदा के साथ मिट्टी पे क्या कर रहा है, रेंग रहा है. ओह, what a glorious moment that would be. Wow, oh, it would be so glorious that this man who is 90 plus in age, when he got an opportunity, when he saw Jesus, when he saw the man from heaven, an extraordinary person, he took the chance and did abak and got dusty and started wrestling with the Lord. Many of your things you will not get till the time you learn to wrestle and take what belongs to you. आप में से कई लोगों को आपकी चीजें मिलेंगी ही नहीं जब तक आप उन चीजों के लिए मल्ल युद्ध करना ना सीख There जाएं। is a wrestling that you need to do before you can receive what the Lord has decided to give you. आपको एक मल्ल युद्ध करना ही पड़ेगा वो पाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए योजित करके रखी हुई है। Now this wrestling, not a wrestling where they were punching each other. और ये जो मल्ल युद्ध है वो ऐसे ही नहीं, वो एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे। But what was happening there? लेकिन वहाँ हो क्या रहा था? Jesus was, the man, God man was trying to move away, but Jacob was, नहीं छोड़ूंगा. ये जो पुरुष है जो परमेश्वर की ओर से है वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और याकूब कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you. नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you. That was powerful. और ये बहुत ही It सामर्थी has था। never happened in the Bible before. A man holding on to Jesus and saying, नहीं छोड़ूंगा. I am not gonna leave you no matter what. मैं नहीं छोड़ूंगा आपको चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। And a huge wrestling is going on. और वहाँ पे एक भयंकर युद्ध हो रहा है। And it was at that time. और ये उस समय है। Verse number 25 says, 25वां पद कहता है the God man touched the thigh of Jacob. और वहां पे लिखा है कि वो पुरुष ने, वो परमेश्वर के पुरुष ने उसकी जांघ की नस को छुआ। The thigh. जांघ। Why the thigh? क्यों जांघ? It could have touched anywhere, but why the thigh? सारे शरीर में किसी भी भाग को छू सकते थे, पांव के जांघ के भाग को क्यों छुआ? Because in Genesis 24, क्योंकि उत्पत्ति 24 में we see a story of Abraham swearing to his servant. और वहां पर हम एक कहानी देखते हैं जहां पे अब्राहम अपने दास से एक वायदे को बांधते हैं, वाचा बांधते हैं। कैसे? Yes, by placing his hand upon the thigh, underneath the thigh of that man. और उस दास के पांव जांघ के नीचे हाथ रखकर एक वाचा को बांधी जाती है वहां पे। Wrestle ऐसा चल रहा था कि खुदा ने सीधा जांघ पकड़ के बोला, तेरे साथ आज की रात वाचा बनाने जा रहा हूं। And
and they wrestled such that the Lord himself said that I am going to bind you in a covenant with From myself. outside it is looking like wrestling, but from deeper inside it is an oath and a revelation and a covenant that God, man and Jacob is making. और बाहर से देखने को ये कुश्ती लड़ रहे होंगे, मल्ल युद्ध कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से यहाँ ये हो रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रकाशन, एक बहुत बड़ा वाचा, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में धारण हुआ और याकूब के बीच में हो रहा है. It was night. रात थी. And then once God touched the very thigh of Jacob, और जैसे ही वो परमेश्वर ने वो जांग को छुआ याकूब के, God said to Jacob, याकूब से परमेश्वर ने कहा, let me go. मुझे जाने दो, Let me go. मुझे जाने दो, Let me go. मुझे जाने दो. आप जाने दोगे खुदा को? Will you let him go? तभी नहीं आता इतना करीब आपके. Right? कौन जाने देगा? मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं तो पकड़ लूंगा. I will never let him go. I will hold on until आखिरी tight. नाखून पकड़ कर भी उड़ना पड़े वो भी पकड़ के मैं उड़ूंगा, लेकिन खुदा अगर पास आ जाए तो उसे बिल्कुल जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. बड़ी मुश्किल से तो मिला है, अब कैसे जाने दूं मैं. I will Right? not let him go. Jacob just God said जाने दे भाई, जाने दे. Let me go. Because सुबह होने वाली है. Because it's going to be dawn now. You ever thought why God said it is going to be dawn? मुझे जाने दो. And वहाँ पे क्यों परमेश्वर ने बोला कि let me go? The beautiful part is at night Jacob was unable to see who the man is क्योंकि कोई light थी ही नहीं. Because at night Jacob could not identify who it was because there was किसी को समझ darkness. आया कहानी? वो रात को सबको छोड़कर दूसरी पार आया, अंधेरा चल रहा है, तब लैंप पोस्ट नहीं होते थे और हाथ में लालटेन लेकर घूम नहीं रहा था. वो अंधेरे में चल रहा था. एक मर्द दिखा और उस अंधेरे में उसे समझ आ गया कि ये जो सामने खड़ा है ये खुदा है. इतना खुदा में बढ़ जाओ कि अंधेरे में भी पता लग जाए जो कमरे में घुसा है वो और कोई नहीं, वो खुदा है. He understood at night it is God. And then God is telling her, प्रभु से बोल रहा मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है, क्योंकि सुबह को मेरे बच्चे तू मेरे तेजस के सामने टिक नहीं पाएगा, इसके लिए रात को जाने दे. Let me go at night. Amen. You will not be able to face me in the morning because of the glory that I hold. Let me go tonight. Isn't that powerful? क्या ये सामर्थ्य नहीं? And that is why for some of you I keep telling you, get up at night and start praying. रात को उठो, दुआ करो, क्योंकि क्या पता रात को कोई तेरे कमरे में उतर जाए और हर रात तेरी बेहतरीन हो जाए. You never know that when you pray at night, who will enter into your room, and that is why I ask you to pray. All those 3 days while we were having meeting, और तीनों दिन जब हम मीटिंग में थे, we were living in a hotel. हम होटल में थे. Every day without alarm I will wake up at 3 at night. और हर दिन मैं रात को 3 बजे मैं उठता था बिना अलार्म के. And then I will go down. और मैं घुटनों पर जाता. I will take my Bible. मैं बाइबल लेता. And then I will go to the lobby. और मैं नीचे जाता होटल के. And then I will open my Bible. मैं बाइबल खोलता. And I'm a very dramatic man. और मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के करता हूँ. So I was having my earphones. मेरे कान में ईयरफोन लगे And थे. it was such a beautiful morning, 3 in the morning. और इतनी खूबसूरत सुबह थी. As I was listening to the music, और जब मैं गीतों को सुन रहा था, I forgot I was in the lobby. मैं भूल गया कि मैं लॉबी So I में was बैठा lifting था. my hands. मैं अपने हाथों को उठा And I रहा was था. praising Jesus 3 in the morning, 4 in the morning in the lobby of the hotel. और मैं वहाँ पे सभी वो एक पब्लिक स्पेस होती है लॉबी, वहाँ पर बैठ के मैं प्रभु का हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद कर रहा था. मैं यीशु का धन्यवाद कर रहा था. There 3 was a बजे. big receptionist, a big man in the reception that was seeing me. और एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी रिसेप्शन में बैठा हुआ था, वो मुझे घूरे जा रहा था. And so I was singing song. और मैं गीतों को गा रहा By हूँ. 4:30 I felt like having a cup of coffee. और 4 साढ़े 4 बजे मुझे ऐसा लगा एक कॉफी पी लेनी I thought चाहिए. let me have some coffee with Jesus. मैंने कहा कि एक कॉफी तो बनती है प्रभु
यीशु के Because साथ। by morning he will leave, so let me have a coffee before I can have it with my wife. Let me have a cup of coffee with Jesus. क्योंकि मुझे पता था भोर होते ही उनको जाना होगा, तो मैं एक कप कॉफी उनके साथ पी लेता How many हूँ। of you are able to feel the presence of the Holy Spirit? It is so thick in this place right now. आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? ये बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य उपस्थिति हमारे बीच So में। I went and took the coffee, और मैं गया और मैंने कॉफी उठाई, took it from the coffee machine. कॉफी मशीन से बनाई। Usually Dr. Maima prepares it for me, but she was in the room. So early morning for 4:30, while singing, lifted my hands. I went ahead and still singing, took the coffee. और मैं गाना गाते हुए आराम से उस कॉफी मशीन के पास गया, मैंने अपनी कॉफी बनाई और मैंने उठाई। And then I went to the receptionist. और मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया मैंने कहा कितने हुए? How much it is? और मैं I asked what is the price, कितना I पे took a करना है? 5 pound. मैंने 5 पाउंड I उठाए, gave it to him, मैंने उसको दिया and he's still looking at me. और फिर भी वो मुझे देख ही रहा And है। I said 5 pound. मैंने कहा ले 5 I said, पाउंड। sir, let me know how much it is. मैंने कहा बताओ कितना हुआ इस And कॉफी he's still का? looking at me. और अब भी वो मुझे देख ही रहा I है। said, sir, what happened? मैंने पूछा हुआ क्या? He said, nothing, no money, no money. और उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं है। I did that on the second day. मैंने यही चीज दूसरे दिन भी की, The most powerful thing happened on the third day. लेकिन सबसे सामर्थ्य चीज तीसरे दिन हुई। The third day, this man was still there. और तीसरी रात भी ये आदमी There अभी was भी another वहीं था। woman with him. उसके साथ एक औरत भी थी। The moment I got out of the lift, और जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, he looked at me, I looked at him. और हम दोनों ने अपनी नजरें मिलाई। I had my weapon in my hand. That's my Bible, nothing else. We carry those weapons, we carry a Bible. मेरे हाथ में वेपन था, मेरा शस्त्र था, जो मेरा बाइबल है, हम बाइबल को ही उठाते हैं, वही हमारा शस्त्र है। He looked at me, he shook his head like this. I shook my head like this. और उसने अपना सर हिलाया और मैंने भी अपना सर उसे देख के हिलाया। 3 in the morning, I started singing, praising God. और सुबह के 3 बजे मैंने आराधना करना शुरू कर दी। I was excited. मैं बहुत ही उत्साहित था। I decided that day to walk around that place. 3-4 in the morning, I decided to walk around that place and do a prayer walk. और सुबह 4 बजे मैंने निर्णय लिया कि मैं उस जगह के चारों ओर चलकर प्रार्थना वॉक करूंगा। It was freezing cold, और बहुत ठंड थी सुबह and I did सुबह, not have a jacket. और मेरे पास एक जैकेट नहीं था। But Jesus, the warmth of Jesus was with me. So I said, Master, let's go together. और प्रभु का वो जो गर्माहट था मेरे साथ, तो मैंने कहा यीशु चलो मेरे साथ, चल संग I चलते did a हैं। beautiful prayer walk. मैंने एक खूबसूरत प्रेयर वॉक किया। बीच में KFC भी दिखा. I saw KFC in between. KFC पे भी हाथ रख के दुआ किया. I prayed over KFC. और अगले दिन KFC का खाना भी मिल गया. Next day I got KFC's food also. So घूम कर मैं वापस आया. I walked and I came back. When I came back, और जब मैं वापस आया, as I was entering the lobby, जब मैं लॉबी में एंटर किया, this man was standing there. ये आदमी वहीं खड़ा था। Trust me, सच में, the moment he saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, he was smoking. वो सुट्टा मार रहा था अपनी दोस्त के साथ. with his friend। The moment he saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तुरंत नीचे फेंका. he threw it on the floor। मैंने भी कहा, वाह, अगर हम जैसे तुच्छ को देखकर तेरा सुट्टा नीचे आ जाता है, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका जरा सोच. उसके आने से किस किस का जीवन बदलने वाला है, क्या क्या माहौल बदलने वाला है, क्या क्या जीवन बदलने वाला है. If just by seeing me he is ready to change and throw his cigarette away. Just imagine the Lord I'm preaching about. If he enters our lives, how many people are going to change their lives unto Jesus? We had powerful 3 days. बहुत ही सामर्थ्य 3 You know, दिन one थे। testimony that we received on Sunday, that meeting is still on live. That two we received. One I cannot tell you because it's so powerful, but it is very, very secretive. But the second one was, we met so many people, and at the last we met a young man. You remember that? और वहाँ पे संडे को हमने एक इतनी खूबसूरत एक गवाही सुनी। 2 थी, उनमें से एक हम बता नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा जवान लड़का था। He said, for 6 months I stopped praying, Pastor. और उसने ये कहा कि 6 महीने पास्टर जी मैंने प्रार्थना करना बंद कर Over दिया। a year I have stopped even taking my Bible. 1 साल से ऊपर हो गया, मैंने अपने बाइबल को छुआ तक नहीं है। But he said, tonight, और लेकिन उसने कहा आज, and he was weeping, और वो रो रहा था वो बच्चा। and even his nose was coming, उसके नाक से भी बह and रहा his था, tears were coming, उसके आंसू बह and रहे again his tears were थे, coming, और बह रहे थे, and it kept coming. और वो रोता रहा। And he said, tonight I met
Jesus. उसने कहा आज रात को मेरी मुलाकात यीशु से हुई है। I met Jesus. मैं यीशु से मिला हूँ आज He रात। said, from today my life will never be the same, pastor. उसने कहा पास्टर आज से मेरा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। People of God, प्रभु के लोगों, when Jesus comes, जब यीशु आएगा you will know that he has come. आपको पता लग जाएगा कि वो आ चुके हैं। When he comes, don't leave him. जब वो आए उसको छोड़ना मत, Hold on to him. उसको पकड़ लेना। What if he touches your thigh and makes a covenant with you? क्या ऐसा अगर हो जाए कि वो आपके जांग पर आकर अपना हाथ रखे और आपके साथ एक वाचा को ही बांध ले? And then God said, let me go, morning is coming. और वहां पे प्रभु ने कहा मुझे जाने दे, भोर होने को है। And then he said, और फिर कहा I will not let thee go till thou bless me. और याकूब ने कहा मैं तुझे जाने ना दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे दे, मुझे आशीर्वाद ना दे दे। Till the time you don't bless me, Lord, I'm not leaving you. प्रभु जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करेंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। What was he saying? क्या कह रहा था वो? He was not saying, bless me so that I can have things. I will not leave you till the time you will not change my spiritual DNA. और वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे संसारिक और लौकिक चीजों को तू दे के मुझे आशीषित कर रहे। वो कह रहा था मैं आपको तब तक नहीं जाने आपको दूंगा। समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोला, क्योंकि कईयों को समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। खुदा ने मुझे ऐसा रेवलेशन दिया, जब वो पैदा हुआ तो उसके बाप के लहू से पैदा हुआ तो उसका नाम क्या पड़ा? Jacob. Right? When he was When born, he was born out of his father and mother, and the DNA of his father and mother was upon him, and that's why they named him what? Jacob. क्योंकि उस जमाने में नाम देने का अधिकार पैदा करने वालों को ही होता है, तो पैदा करने वालों ने उसे नाम दिया जेकब। लेकिन जब उसने खुदा को कहा कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करता, वो क्या कह रहा था पता है? जो नाम उधर से मिला है मेरे माता पिता से वो नहीं चाहिए, वो डीएनए नहीं चाहिए, नया डीएनए चाहिए। और फिर खुदा ने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं है, इस्राएल है, इस्राएल है, इस्राएल है। बाप और माँ ने नाम दिया, the parents gave the name, उन्होंने नाम दिया जेकब, डिसीवर, धोखा देने वाला, सप्लेंटर। पर जब परमेश्वर ने उसे छुआ झांग में, वो रात उसका एक और बार पैदा होने वाला रात था। आज मेरा दुआ है तुम में से भी कई का आज पैदा होने वाला रात हो। पुराने डीएनए हटकर, ओल्ड डीएनए हटकर एक नए डीएनए की ओर बढ़ने के लिए there was a change in his DNA. उसके डीएनए में एक बदलाव आ गया। No more Jacob. अब याकूब नहीं। बाप जब भी एक बेटे को नाम देता है तो अपने नाम के साथ जोड़कर ही नाम देगा। जब आप पासपोर्ट बनाते हो तो वो पूछते हैं सरनेम क्या है। आधार कार्ड नहीं है सर, सरनेम इंपॉर्टेंट है। जेकब के सरनेम में कहीं ना कहीं इसहाक और रबेका का छाप पड़ा हुआ था, लेकिन खुदा ने कहा आज तुझे एक नया नाम, जो नाम मुझसे जुड़ा है वो नाम तुझे देने जा रहा हूं। और खुदा ने कहा तेरा नाम इस्राएल है, इस्राएल है।
मतलब SAR, सार का मतलब आपको पता है क्या है? प्रिंस। बोलिए प्रिंस। Prince. प्रभु ने उसे धोखा वाले से क्या बना दिया पता है? प्रिंस। मैं नहीं जानता लोग आपको क्या बुलाते हैं, पर तेरा नाम क्या है? Prince. खुदा तुझे क्या बनाने वाला है? राजकुमार। खुदा ने सिर्फ उसका नाम सार नहीं दिया, खुदा ने उसका नाम इस्राएल दिया। उसके दूसरे भाग का मतलब आप जानते क्या है? एल, इस्राएल। एल का मतलब क्या है? गॉड। कहने का मतलब बेटे के नाम में बाप का नाम पहले ही चढ़ गया था। Amen. And that is the power of God when God blesses you. जब खुदा तुम्हें आशीषित करे, Oh, come on. God will change your DNA. परमेश्वर आपका DNA बदल देगा। That day Jacob's DNA was उस changed रात को याकूब का DNA बदल गया, forever and ever. हमेशा हमेशा के। He was no more Jacob. अब वो याकूब ना रहा, He became Israel. वो इज़राइल बन चुका था। और इसी के लिए तो बाइबल कहती है इस्राएल का रखवाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके नाम में ही परमेश्वर है। And that is why God says that He is the protector of Israel, because in His name, His surname is of God. That is His Father, El, and that is God. And then God gave a limp to Jacob. और फिर परमेश्वर ने उसके पाँव में एक लिंप दे दिया। वो रुक रुक कर चलने I don't know लगा। how many people have asked me that question. कितने लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, Why a limp? क्यों वो ऐसे रुक रुक के चलता था? क्योंकि खुदा जब आपको एक बार छू ले तो आपकी चाल पुरानी वाली होगी नहीं, थोड़ी अलग चाल ही होगी आपकी। Because once God touches you, your walk will not be the क्योंकि same अगर again. चाल पुरानी होती तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि भाई इसका कुछ बदला भी है कि नहीं। लेकिन जब वो घर पहुंचा थोड़ा सा हिल हिल कर, तो पहली पत्नी से दूसरी पत्नी से 11 अब्बू के बच्चों ने पूछा होगा अब्बू हुआ क्या, तो उसने कहा हुआ होगा किसी ने मुझे छू लिया। Somebody touched me. Somebody touched me. Somebody touched me. Somebody touched me. Somebody touched me today. किसी ने मुझे छू लिया और उसने उस जगह का नाम दिया फेनील। कोई तो बोलिए फेनील। पेनीर नाम रखा उस जगह का, जिसका मतलब है फेस ऑफ गॉड, जहां पे वो परमेश्वर से मिला। and the meaning of the place was face of God, where he met God. My prayer today is let ICM be a peneal for all of you. और आज मेरी प्रार्थना ये है कि ICM भी आप सभी के लिए एक पेनीर बन जाए। Now you will understand when Paul goes to God and says, हो सके तो ये कांटा हटा दे, और हो सके तो ये कांटा हटा दे, और हो सके तो ये कांटा हटा दे। और प्रभु ने कहा नहीं हटाऊंगा, ये मेरी ओर से तुझे है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगली बार कोई तुझे पूछे ऐसे क्यों चल रहे हो, तो बोल देना उन्हें किसी ने छुआ है। Amen. Somebody touched me. Somebody touched me. Somebody Touch me. touched me. And that day, और उस दिन Israel was born इज़राइल जन्मा। from one man. एक व्यक्ति से Came one of the most powerful nations in the world. एक ऐसा सामर्थी देश निकला।
Simply because he took the hand of God and said, I'm not going to leave you. क्योंकि उसने परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। Imagine if you can hold on to the hand of God today. अगर आज आप परमेश्वर के हाथ को ऐसे थाम ले। जो पता है मैंने तेरा हाथ क्यों पकड़ा? Do you know why I held your hand? नहीं बताना तुझे, अभी तेरे को समझाता हूं। परमेश्वर मुझे आशीषित कर, मुझे विस्तार में बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर रहे। मुझे बुराई से 3 साल लग गए ये प्रचार करने में और तुझे समझाने में कि 3 साल का स्टेटस तेरे भलाई को बदला क्यों पता है? क्योंकि तेरा हाथ खुदा के हाथ के नीचे था और तेरा सर खुदा के हाथ के नीचे था। पीपल ऑफ गॉड, याबेश ने कहा तेरा हाथ मुझ पर रहे। आज जो खुदा का हाथ पकड़ ले वो दुनिया बदलने जा रहा है। Amen. Those who hold the hand of the Lord are going to change the course of the nations. From Jacob came Israel। उस रात यीशु आया और इज़राइल को जन्मा दिया। That day Jesus came and the birth of Israel happened. एक नाम बदले में इज़राइल आया, अगले नाम बदले में कुछ और आने वाला है। हाँ, आपको समझ आ गया। Praise the Lord। कुछ को तो समझ आ गया है। अगले नाम बदले में एक बार और यीशु एक इंसान के सामने खड़ा है जिसका नाम है शीमोन। Jesus is standing in front of Simon और बोला, from today onwards I am changing your name. No more Simon। अब से तू शीमोन नहीं है। You shall be called Peter। पत्रोस, पेट्रा, पारा, रॉक। क्यों रॉक? Why rock? Because Jesus is the rock of the church, the foundation of the church। पहली बार इज़राइल बनाने आया, अगली बार नाम बदलने आया क्योंकि वो चर्च तैयार करने जा रहा था। Tonight 4000 साल पहले किसी को छुआ तो इज़राइल आया और 2000 साल पहले छुआ तो चर्च आया। सोचिए अगर आज की रात वो छू ले तो क्या क्या आने वाला है। What all God is going to do for us। हमारे लिए क्या क्या करने वाला है। Your spiritual DNA shall be changed। आपका आत्मिक डीएनए बदलने जा रहा है। Your name shall be changed। आपका नाम बदलने जा रहा है। Your location will be changed। आपकी जगहें बदलने जा रही हैं। Supernatural shift। सुपरनैचुरल शिफ्ट होने जा रहा है। That is why we sing। और इसलिए हम यीशु देते तुझको, यीशु। क्या बोलते हम? तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। देता आदर तुझको, Jesus। तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। आदर तुझको यीशु। सबसे ऊंचा
touch me, Jesus. Oh, touch me, Jesus. For I am your child. छू ले मुझको, यीशु छू ले मुझको, छू ले मुझको, क्योंकि हूँ तेरा मैं। Touch me, Jesus. Oh, touch me, Jesus. Oh, touch me, Jesus. For I am your Yes, yes, yes. If he can touch you today, अगर वो आज आपको छू ले, if he can touch you today, if you could touch him today, if you can just touch him today, if you could just touch him today, if you could just touch him today. Years ago, एक व्यक्ति था जिसका नाम जॉन न्यूटन था। His name was John Newton. वो एक स्लेव ट्रेडर था, स्लेव ट्रेडर। वो लोगों को पकड़ता था और उन्हें बंदी में रख के उनसे स्लेवरी का काम कराता था। लेकिन 1748 में एक बड़ा तूफान उसके ऊपर आया। He was a slave trader, and there came a huge storm in 1788. उस दिन उस तूफान के मध्य में And in midst of that storm, उसने कहा, Lord, have mercy on me. he said, परमेश्वर मुझ पे दया कर। Lord, have mercy on उसने me. कहा, परमेश्वर मुझ पर दया कर। And God shifted his life completely. और फिर परमेश्वर ने उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात उसके लिए पेनील वाला रात बन गया। That night became a night of Peniel for him. जो व्यक्ति दूसरों को स्लेवरी में रखता था, The man who used to bring people please into do not slavery. disturb. Please do not disturb. Please do not disturb. The Holy Spirit is here. Do not do that. Do not do that. You want to do it, you go outside the church and you do it.
समाना खाचाला बादशाह का ढोल। That moment became a Peniel moment. वो पेनिएल का एक क्षण बन गया उसके लिए। That day, उस रात he decided उसने ये निर्णय लिया that I will live for God. कि मैं अब से प्रभु के लिए From जीऊंगा। a slave trader, एक इंसानों को बंदी बनाने वाले मनुष्य से he ended up becoming one of the greatest songwriter. एक दलाल से एक परमेश्वर का सबसे बढ़िया गीत लिखने वाला And व्यक्ति ended बना up दिया। writing, Pastor, one of the most amazing song called as Amazing Grace. Wow. How sweet the sound, the sweet, a wretch like me. I once was lost, but now I am found. was Was blind, but now I see. It takes God one touch, one moment, and your destiny can be changed. और परमेश्वर के लिए एक क्षण लगता है और एक उसका छूना काफी है कि आपका जीवन का भविष्य बदल जाए। Everything can change in a second for you. हर चीज आपके लिए एक सेकंड में बदल सकती है। In a moment, it can change for you. एक क्षण में आपके लिए बदल सकती है If you can honor that moment. अगर आप उस क्षण का आदर कर सकें। It was a Peniel moment. वो उनके लिए एक पेनिएल का क्षण था। The devil can distract you from that moment. शैतान आपको उस क्षण से भटका सकता है Because he doesn't want you to receive that touch. क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस टच को रिसीव I करें। have seen people get healed because of that Peniel moment. मैं देखा है लोगों को उस पेनिएल क्षण की वजह से चंगाई प्राप्त करते हुए, Because they understand it is that moment. क्योंकि वो समझते हैं कि ये वही क्षण है। Tonight, this could be that moment for you, आज रात ये आपके लिए वो क्षण हो सकता है where God touches you जहां पे परमेश्वर आपको छुएगा and changes your destiny forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. जो हमेशा हमेशा के लिए आपके भविष्य को, आपके कल को बदल सकता है। Tonight, may God speak to you आज रात को प्रभु आपसे बात करें and change you और आपको बदल दें and touch you और आपको छू ले and transform you और आपको परिवर्तित कर दे, and use you आपका उपयोग and करे, bless you आपको आशीषित and करे, lift you आपको उठाए, and use you आपको उपयोग to करे change somebody else's life. ताकि आप किसी और के जीवन को बदल सकें। From Jacob to Israel, याकूब से इज़राइल तक your destinies will be turned around. आपके भविष्य, आपका जीवन बदलने Lift जा up रहा your है। hands if you can, if you desire that touch from the Master. अपने हाथों को उठा लें अगर आप चाहते हैं और आपकी चाहत है कि आप प्रभु के उस टच को महसूस करें। Next Sunday evening अगले संडे शाम in this church, इसी कलीसिया के we will अंदर have a special meeting. हमारी एक स्पेशल मीटिंग It होगी। will not be a normal Sunday service. एक नॉर्मल साधारण संडे सर्विस नहीं It will be होगा। a Holy Spirit touch Sunday service. अगले संडे हम पवित्र आत्मा के उस टच के सर्विस को हम करेंगे। Next week, 5 o'clock, we will have a powerful service here in this church. अगले हफ्ते 5 बजे हम एक बहुत ही अति सामर्थी सेवकाई में प्रवेश करेंगे। I am coming prepared because I know the Holy Spirit is going to show up that day. और मैं तैयारी के साथ आऊंगा क्योंकि पवित्र आत्मा उस दिन आएगा To give a touch to every person. ताकि वो हर किसी को वो टच दे सके, To give us a Peniel moment. ताकि हमें भी वो पेनिएल का वो मोमेंट मिल सके। If you know someone is sick, bring them because they will be healed that day. अगर आप किसी बीमार को जानते हैं, आप ले आए
क्योंकि उस दिन उनको चंगाई मिलेगी, that day healings will happen, चंगाइयां होंगी उस रात, that day lives will be changed, जीवन बदलेंगे उस that day रात, God will speak to you, और परमेश्वर आपसे बात करेगा उस दिन, that day a shift will happen for उस you, दिन एक शिफ्ट होगा आपके लिए, that day testimonies will flow in this place. और उस दिन इस घर के अंदर गवाहियां बहने लगेंगी। और जीवित खुदा आज की रात Dear God, जिंदा tonight खुदा मैं मांगता हूँ, we ask, खुदावंद हम इस पेनियल मोमेंट को खोना नहीं चाहते, we do not want to miss this perennial moment, खुदावंद हम Lord. नहीं खोना चाहते परमेश्वर इस अद्भुत ताकतवर मोमेंट को खुदावंद। We do not want to miss this mighty moment, Lord. ओ प्रभु जी हम मांगते खुदा हमें ऐसे छू जैसे आपने पहले कभी नहीं छुआ, Touch us the way you have never touched us before. ऑनलाइन और ऑफलाइन में खुदा ऐसे छू खुदा जैसे पहले कभी नहीं छुआ। Online and offline, touch us, Lord, like you've never touched us याकूब की before. तरह हमें वो सब कुछ छोड़ने दे परमेश्वर, हमें मदद कर ताकि हम तुझसे मिल सके खुदा। Like Jacob, allow us to leave everything behind, Lord. so चीजों that we के can साथ meet you. नहीं, लोगों के साथ नहीं, परिवार के साथ नहीं, कोई तो कहिए परमेश्वर में अकेले आ रहा हूँ, Not with things, not with people, not with family. परमेश्वर में अकेले आ रहा Lord, I'm हूँ। coming alone. कोई है यहाँ की आवाज उठा के बोलने वाला, परमेश्वर में अकेले आ रहा हूँ, अकेले आ रही हूँ। Oh, I'm coming ओ मैं अकेले आ रहा हूँ, मैं अकेले आ रहा हूँ, मैं अकेले आ रहा हूँ। Yes! Yes! In the mighty name of Jesus! Yes, 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 yes! Mighty! Come on, come on, come on, come on in the name of Jesus! Rabababa shadala rabarete. Ribababa shadala rabariata. Ribeshetori andala rabasetore. Yes, 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 yes! Urabababa shakadili risitiria. Ader तुझको rabababa shetelere. Touch, 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 touch. Ura bashatale rose thore andere beshe. Come on, come on, come on, church! There is something powerful. कुछ सामर्थ्य हो रहा है इस जगह के अंदर. कुछ सामर्थ्य परमेश्वर कर रहा है इस जगह के अंदर. Rabababa shadala rabababa shakadala rabababa rabababa shatara bariata rabababa shadige dorebo.
Yes, 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 yes. Oh, wonderful. Wonderful. उस प्रेजेंस को पकड़ लो. उस प्रेजेंस को पकड़ लो. उस प्रेजेंस को touch that presence. लाइफ में तेरे घर के अंदर वो प्रेजेंस, तेरे जीवन में वो प्रेजेंस, तेरे शरीर में वो प्रेजेंस. तेरा बाबा शथालिया थाला रबा शेदरे बोशे तेरे आते. Amazing, 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 amazing Jesus. We serve